Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So today in monetary policy, Reserve Bank of India announced a major step in managing the liquidity, and that is the CRR cut. The CRR rate will be cut from 4% to 3%, not immediately, but in phases. In India, we divide the year into two parts. One is called lean season, another is called busy season. April to September is lean season, and October to March is called busy season, when most of the festival comes and there is a lot of demand of money to purchase various goods. And that's why the RBI has given the timetable for liquidity starting September. For fortnight starting September 6, this cut in CRR will be 25 basis point. That means the CRR will come down to 3.75%. Then fortnight beginning October 4, further cut of 25 basis point, effective CRR 3.5%. From fortnight beginning November 1st, it will be further 25 basis point cut, 3.25. And from fortnight beginning November 29th, further 25 basis point cut, effective CRR 3%. So in four tranches, the money will be released from CRR to the banks. And why this liquidity is important? As we are aware, last year the banking system was struggling for the liquidity. And RBI used various modes to induct the liquidity into system, and now they say they have exhausted all those parameters, and that's why they have changed the stance from accommodative to neutral. That means no further accommodations may be available to banking system from Reserve Bank, and that's why they have given this front loaded reduction in repo, as well as their, you can say, plan for CRR cut well in advance, so that banks plan their liquidity management effectively. As we are aware, the deposit growth is struggling. The banking system is seeing very modest deposit growth of 10%. At the same time, credit growth is much lower, that is at 9.8%. And that's why some surplus liquidity is there. The moment credit picks up, or the moment deposit growth further goes down, there may be again liquidity problem. And that's why, to foresee that and to address that in a timely manner, Reserve Bank of India announced the CRR cut along with cut in repo rate, because repo rate has its own limitations. Because once you cut the repo rate, that means you are signaling the banks to cut on fixed deposit rates. And the moment you reduce the fixed deposit rate, it may lead to further disincentive for the bank deposits, and the bank deposits that is already under pressure may see further fall. And that's why RBI has taken a precaution that liquidity be managed through another tool, that is CRR reduction, because RBI might be thinking that cut in interest rate at this stage when deposit growth is already low may be counterproductive. And that's why they have taken both these steps together, and they have provided two different, you can say, streams to help the banks. And this is what I wanted to discuss in this video. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. आज भारतीय रिजर्व बैंक ने एक मॉनेटरी थ्योरी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप घोषित किया बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए, वो है CRR कट. ये CRR कट इमीडिएट लागू नहीं हो रहा. ये CRR कट ट्रेंचेस में लागू होने और आने वाले दिनों में लागू होना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत के अंदर जो एक वर्ष है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है. अप्रैल से लेकर सितंबर के पीरियड को हम बोलते हैं लीन पीरियड, जिसके अंदर कम एक्टिविटीज होती है, और दूसरा पीरियड होता है जिसको हम बोलते हैं बिजी सीजन, जो अक्टूबर से स्टार्ट होकर मार्च तक चलता है, जिसमें भारत के अंदर बहुत सारे त्यौहार आते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, और उस समय पैसे की डिमांड हाईएस्ट होती है, अधिक से अधिक लोग गुड्स खरीदते हैं, तो उस समय अधिक पैसे की आवश्यकता होती है.
तो अभी आरबीआई ने क्या किया कि जब रेपो रेट कट किया तो नेचुरल है कि एक इंडिकेशन है इंटरेस्ट रेट गिराइए। इंटरेस्ट रेट गिराइए मीन्स फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट गिरने पहले शुरू होंगे, लोन के तो उसके बाद ही हो सकते हैं। तो जब आपका ऑलरेडी डिपॉजिट ग्रोथ रेट बहुत कम है, 10% है इस समय, और क्रेडिट ग्रोथ ऑलरेडी 9.8% है, तो ऐसे के अंदर ये चांस है कि इंटरेस्ट रिडक्शन करने से हो सकता है डिपॉजिट ग्रोथ रेट और कम हो जाए। तो अगर ऐसा होगा तो बैंकों की लिक्विडिटी पे प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि अभी क्या है कि अगर हम देखें 5-6 महीने तक, मतलब मार्च तक लिक्विडिटी की प्रॉब्लम रही बैंकिंग में, और रिजर्व बैंक ने जितने अवेलेबल मेजर्स थे सारे यूज करे लिक्विडिटी देने में। अब इसीलिए उन्होंने स्टांस चेंज किया है एकोमोडेटिव से न्यूट्रल, कि जितने भी वे थे वो हम सब यूज कर चुके हैं, अब आगे हम यूज नहीं करेंगे, आपको लिक्विडिटी खुद मैनेज करनी है, बैंकिंग सिस्टम को उन्होंने ये समझाया है। इसलिए एक तरफ जहां रेपो रेट का कट किया है वहां पर सीआरआर का कट करके उनको लिक्विडिटी ग्रेजुअली देने की बात भी समझाई है। तो सीआरआर कट 4 हिस्सों में आएगा। पहला होगा फोर्टनाइट, जो स्टार्ट होगा 6 सितंबर से, उस समय 25 बेसिस पॉइंट सीआरआर कट होगा और इफेक्टिव सीआरआर हो जाएगा 3.75%। दूसरा फोर्टनाइट जब 4 अक्टूबर से स्टार्ट होगा उसमें फर्दर 25 बेसिस पॉइंट का कट होगा और इफेक्टिव सीआरआर हो जाएगा 3.5%। इसी प्रकार जो फोर्टनाइट 1 नवंबर से शुरू होगी उसमें फर्दर 25 बेसिस पॉइंट का कट होगा और इफेक्टिव सीआरआर हो जाएगी 3.25%। और जो फोर्टनाइट नवंबर 29 से शुरू होगा उसमें 25 बेसिस पॉइंट गिर के सीआरआर 3% पे आ जाएगा। और इस प्रकार जो फंड्स कैश की फॉर्म में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ब्लॉक्ड हैं बैंकिंग सेक्टर के, वो उनको वापस मिल जाएंगे 1%। तो जो 4% से घट के ये 3% हो जाएगा। तो यहाँ दो तरह से बैंकिंग को फायदा होगा, एक तो लिक्विडिटी वापस आ जाएगी उनके पास, दूसरा ये पैसा रिजर्व बैंक के पास विदाउट इंटरेस्ट है, तो इस पैसे पे वो कुछ इनकम भी जनरेट करने लगेंगे। इसलिए ये दोनों मेजर्स, रेपो रेट का कट और लिक्विडिटी का प्रोवाइड किया जाना, ये साइमल्टेनियसली लिए गए हैं ताकि जो बैंकिंग सिस्टम में आने वाले वक्त में दोबारा लिक्विडिटी की समस्या ना आए। अभी समस्या फॉर द टाइमिंग हल हो रखा है, क्योंकि आरबीआई ने बहुत अग्रेसिव मेजर्स लेके ये लिक्विडिटी इंडक्ट कर दी। अब क्योंकि वो लिक्विडिटी इंडक्ट कर दी और बार बार नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे स्टेप सजेस्ट किए हैं कि अभी से आप अगले साल की पूरी प्लानिंग करिए ताकि आपकी लिक्विडिटी वेल मैनेज रहे। और आरबीआई के दिमाग में क्या है सब कुछ उन्होंने फ्रंट लोडेड कर दिया, कोई सस्पेंस नहीं रखा कि इंटरेस्ट कट रेपो के अभी 25 बेसिस पॉइंट करते हैं फिर बाद में 25 बेसिस पॉइंट करते हैं। उन्होंने एक साथ 50 बेसिस पॉइंट करके बता दिया है ये मैक्सिमम कट है जो हमने कर दिया है, अब आपको इसी में मैनेज करना है। इसी तरह सीआरआर कब कब कट होगा वो भी टाइमली बता दिया है ताकि बैंक अपनी प्लानिंग करके चल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।